Dear students, hello, how are you? I welcome all of you to my YouTube channel, Oasis Classes. This is Nandan Singh. Today, we are going to study the 5th chapter of your Flamingo book, Indigo. Many of the students have studied this chapter while taking the classroom. But through YouTube, this is going to be your first experience. The story has been written by Louis Fisher. It is supposed that it is one of the best compositions ever written on our father of nation, Mahatma Gandhi. It is said that your greatness is measured through the acclaim, through the admiration, through the praise which is done by your enemies. My dear students, if someone has studied the chapter properly and if you have gone through the introduction of the chapter, if you have studied something about the author Louis Fisher, you would have seen that Louis Fisher had served in the British Army for a short time, for at least 2 years, during 1918 to 1920, for 2 years. Obviously, there was no match between Mahatma Gandhi and Louis Fisher. Louis Fisher was the representative of the British Army. He served in the British Army, although for a short time. On the other hand, Mahatma Gandhi was in vehement opposition of the British system, British government. In spite of that, when you conclude the chapter, when you read the chapter properly, from very first line to the last line, you observe one thing, and that thing is that there is a great amount of respect in the heart of Louis Fisher for our father of nation, Mahatma Gandhi. His critical analysis about Mahatma Gandhi opens our eyes, particularly opens the eyes of those people who think that Mahatma Gandhi was not as important as other freedom fighters like Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose and different other extremists. But this piece of composition will open your eyes. This piece of composition will tell you that whatever you are taught, whatever you are told by some other people, so-called intellectuals, that Mahatma Gandhi ruined our country, is completely baseless, false, and to some extent a propaganda to defame Mahatma Gandhi. My dear students, there are so many things to say about Mahatma Gandhi. But this platform is not
suitable enough to talk so much about a particular person, it doesn't allow us to elaborate his nature, his character, since we have a limited scope and time on YouTube. So let us start our lesson. Louis Pisser says that he met Gandhiji in 1942, and if you have studied history properly, you would have studied that this was the time when Mahatma Gandhi started his Quit India movement. So Louis Pisser says 1942 का साल था, मेरी मुलाकात गांधी जी से हुई। मैंने बड़ी निवेदन किया उनसे वो अपने संस्मरण को मुझसे साझा करें, अपनी यादों को मुझसे साझा करें। मेरे कहने के बाद गांधी जी तैयार हुए। उन्होंने अपनी यादों की शुरुआत 1916 से की। वो कहते हैं कि ये दिसंबर 1916 का वक्त था। मैं लखनऊ गया था कांग्रेस अधिवेशन में। सारे भारत से बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, जिनकी संख्या लगभग 2301 थी। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो दिखने से निर्बल, लाचार, गरीब लगता था, वो मेरे पास आया और उसने अपना परिचय मुझे दिया। उसने कहा, गांधी जी, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं बिहार के चंपारण से आया हूं। मैं समझ गया वो निश्चित रूप से किसी की सलाह पर मेरे पास आया था। किसी ने उसे सलाह दी थी कि तुम गांधी जी से मिलो, तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। शुक्ला ने मुझे अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि कैसे अंग्रेज जमींदार वहां के गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की कि शुक्ला गरीब तो था, निरक्षर तो था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वहां से मैं चला। मैंने कहा, शुक्ला, प्रेजेंटली आई हैव नो टाइम टू गो टू चंपारण। आई नीड टाइम to decide when and how to go to चंपारण। और उस समय भारत की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति से उतना वाकिफ भी नहीं थे गांधी जी, क्योंकि याद होगा एक लंबे अरसे तक वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में रहे थे। भारत के प्रति उनका प्रेम, उनकी देशभक्ति उन्हें भारत खींच करके ले तो आई थी, लेकिन अभी भी पूरी भौगोलिक स्थिति से, क्योंकि भारत एक गांव नहीं है, भारत नेपाल और भूटान नहीं है, भारत अपने आप में एक महादेश है, एक विशाल देश। उसके चप्पे चप्पे को, उसके नगरों को जानना, कस्बों को जानना, गांवों को जानना सबके लिए संभव नहीं है, बल्कि कहिए किसी के लिए संभव नहीं। तो चंपारण पहली बार उन्होंने सुना था। बाद में उन्हें बताया गया कि ये नेपाल के तलहटी में है, नेपाल के किनारे है, हिमालय के आसपास, उत्तरी बिहार पड़ता है ये। राजकुमार शुक्ला साहब कई दिनों तक उनके, वो जहां जहां जाते वहां वहां वो जाते। राजकुमार शुक्ला के दृढ़ निश्चय और समर्पण को देख करके बड़ी प्रभावित हुए गांधी जी। एक दिन राजकुमार शुक्ला ने कहा कि गांधी जी, कोई दिन बता दीजिए, कोई तारीख बता दीजिए
मेरे होने से आपको भी असुविधा हो रही है, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, और मैं भी गरीब किसान हूं, मुझे भी समय देना पड़ेगा। तो आप कोई वक्त बता दें ताकि मैं उसी वक्त पर आपसे मिलने आऊं। गांधी जी ने कहा कि फला तारीख को मैं कोलकाता जाऊंगा। उस समय कलकत्ता कहलाता था, अब तो आप जानते हो कोलकाता कहा जाता है। तो मैं फला तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, तुम कलकत्ता आ जाना। चूंकि मैं चंपारण से बहुत वाकिफ नहीं हूं, इसलिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुम कलकत्ता आ जाना, फिर वहां से हम दोनों चंपारण चलेंगे। महीनों बीत गए। जिस दिन की बात गांधी जी ने कही थी, उस दिन वो कोलकाता पहुंच गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद गांधी जी जब अपने मीटिंग से निकले, उन्होंने वहां से पटना की ट्रेन पकड़ी। गांधी जी पटना में राजेंद्र प्रसाद से वाकिफ थे। वो वही राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि चूंकि राजेंद्र बाबू खुद वकील थे और गांधी जी भी वकील थे, तो वकीलों का एक गुण होता है, जब तक चीजों के तह पर नहीं जाएं, क्योंकि उन्हें वकालत करनी है, उनको तार्किक रूप से उन चीजों को प्रस्तुत करना होता है कोर्ट में। तो उसके लिए उन्हें एक वैलिड सॉलिड ग्राउंड चाहिए होता है। और गांधी जी समझ गए थे राजकुमार शुक्ला चूंकि अनपढ़ है तो मुझे उतनी बातें समझा नहीं पाएगा, समस्याएं उतनी समझा नहीं पाएगा। अच्छा है कि मुझे राजेंद्र बाबू के पास जाना है, वो खुद ही बड़े वकील थे उसमें। वो राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए पटना चले गए, लेकिन अफसोस कि पटना में उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वहां पर एक चीज उन्होंने नोटिस की, जो उस समय सर्वव्यापी था, वो क्या, छुआछूत। नीची जाति के लोगों के प्रति ऊंची जाति के लोगों का एक दुर्भावना। My dear students, you are blessed enough that you are not having to suffer from this problem. But there was a time in our country when many people were treated like animals. मेरे दोस्त, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको उस दौर से नहीं गुजरना पड़ रहा है। लेकिन एक समय था कि इतनी भयंकर छुआछूत थी हमारे देश में कि ऊंची जाति के लोगों के कुएं पर नीची जाति के लोगों को पानी पीना अलाउ नहीं था। राजेंद्र बाबू के यहाँ गए थे, प्यास लगी गांधी जी को, लेकिन उनके नौकरों ने यह समझा कि ये कोई नीची जाति का व्यक्ति है, किसान है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग बड़े किसान होते थे, जमींदार होते थे। तो गांधी जी को तो उसमें कोई पहचानता नहीं था। स्वाभाविक रूप से एक जिज्ञासा तो जरूर होगी आपके दिमाग में, ऐसा कैसे हो सकता है, गांधी जी इतने फेमस थे। तो याद रखिए, आदमी को फेमस और उसके चेहरे को सर्वव्यापी मीडिया करती है। आप जिस जिले से आते हो उसके डीएम अगर आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, और अगर आपने कभी तस्वीर उनकी नहीं देखी है, ना तो पेपर में ना टेलीविजन पर, तो आप ये नहीं कह सकते ये हमारे डीएम साहब हैं। ये होता है। और उस जमाने में मीडिया के नाम पर न्यूज़पेपर थे, और न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बहुत कम थी। लोग बहुत कम 5-7% लोग ही गांधी जी को चेहरे से जाते थे। उनकी ख्याति फैल गई थी, लेकिन चेहरे से बहुत कम लोग, क्योंकि वो एकदम शुरुआती वक्त था। तो गांधी जी ने शायद मना किया होगा राजकुमार शुक्ला को, मत बताना कि मैं गांधी हूं। तो बताया नहीं, प्यास लगी, प्यासे ही निकल गए, क्योंकि अछूत समझ करके उन्हें पानी नहीं पीने दिया। वहां से गांधी जी चंपारण चले, लेकिन रास्ते में, चंपारण के रास्ते में, जो बिहारी हैं आप में से उनको मालूम होगा, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो वहां मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, मिस्टर जेबी कृपलानी, जो बाद में बड़े स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, उनको उन्होंने सूचित कर दिया था कि मैं आ रहा हूं।
जेबी कृपलानी आधी रात लगभग 15 अप्रैल 1917 का वक्त था। आधी रात को वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन कृपलानी साहब एक बड़ी फौज के साथ, और किसकी फौज, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो उनका जो जितना स्टूडेंट्स था सारे लोग स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे गांधी जी का। वहां से वो चले। गांधी जी कहते हैं क्या कि कुछ दिन तक गांधी जी रुके, कुछ दिन यानी 2-3 दिन तक। एक और प्रोफेसर थे मिस्टर मालकानी उनके घर पर। यहां पर गांधी जी कह रहे हैं कि यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि मिस्टर मालकानी एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे, टीचर थे। उन्होंने मुझे शरण दिया था चूंकि वो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे, यानी सरकार के सेवक थे। उनकी पेमेंट सरकार के द्वारा की जाती थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को शरण दे रखा था, यानी गांधी जी को, जो किसके विरोधी थे, अंग्रेजों के। तो खतरा यह था कि उनकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन इतना खतरा लेकर के भी मलकानी साहब ने गांधी जी को अपने घर पर रखा। एक बड़ी बात थी। यह वक्त किस दिन का था, जैसे हमने अग्रिम मैंने आपको सूचना दे रखी थी, 15 अप्रैल 1917 का। वहां से गांधी जी निकल गए चंपारण की ओर। चंपारण पहुंचने से पहले, उनके पहुंचने से पहले उनकी ख्याति चंपारण पहुंच चुकी थी। भारी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे। इस क्रम में गांधी जी ने उन वकीलों को बुलवाया जो लड़ाई लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे। किनके हक की? किसानों के हक की। बुलाते ही पूछा कि भाई साहब, आप लोग इन किसानों से कितना फीस लेते हो अपनी वकालत की? तो वकीलों ने अपनी अपनी फीस बताई। गांधी जी बड़े नाराज हुए, बड़ी डांटा उन वकीलों को। कहा, बूढ़ी गाय को दूह रहे हो तुम लोग। जो किसान पहले से ही अंग्रेजों के अन्याय से लाचार हैं, विवश हैं, उन लोगों से इतनी हैवी फी ले रहे हो, और ये जानते हुए कि इसका कोई नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजों से इतने भयभीत हैं ये किसान कि कोर्ट में गवाही तक नहीं दे सकेंगे। और कोर्ट में जब तक गवाही नहीं होगी तब तक इनके हक में फैसला नहीं आएगा। इसलिए ये जो आप वकालत कर रहे हो, ये बेवकूफ बना रहे हो इन लोगों को। तो अब ये नहीं होगा। वकीलों को भी डांटा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि कारण मैं जानूं कि है क्या। तो कारण ये था कि अंग्रेज जमींदारों ने सारी जमीन जो थी चंपारण की, उन किसानों की सारी जमीन पट्टे पर ले रखी थी। यानी कि सारा जमीन समझिए कि कुछ सालों तक, 50 साल 60 साल के लिए लीज पर ले रखी थी। यानी मालिक वो हो गए, जमींदार थे, और अपनी ही जमीन पर गुलाम बन गए थे वहां के किसान। किसानों से कहा था कि जो पैसा हमने आपको दिया है, यानी सूद, जैसे गांव सब में देखते हैं ना, सूद पर लोग जमीन रख देते हैं, तो कहा उसका जो इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट के लिए आपको इस खेत के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होगी। जो कपड़ा में हम लोग नील देते हैं, व्हाइट कपड़े में, तो अब तो वो फैक्ट्री में पैदा होती है, उसमें पौधा होता है। तो कहा कि नील की खेती करनी होगी, और वो जो खेती होगी सब के सब हम लोगों को, यानी अंग्रेजों को देना होगा। और वो आपका जो मैंने पैसा दे रखा है उसका इंटरेस्ट होगा। पैसा तो रखा ही रहेगा। किसानों ने बड़ी सहमति के साथ इस प्रस्ताव को मान लिया था।
85% 15% पर नील उगता था और 85% पर अन्य फसल उगते थे और वो फसल किसानों का होता था, लेकिन नील अंग्रेजों का होता। बाद के वर्षों में जर्मनी ने बड़ी उन्नत किस्म की नील पैदा करनी शुरू कर दी और खेतों में नहीं, फैक्ट्री से आर्टिफिशियल बनावटी, जो ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सुंदर और ज्यादा सस्ती थी, क्योंकि फैक्ट्री से बनती थी, काफी मात्रा में पैदावार और उसका क्या उत्पादन होता था और कीमत बहुत कम होती थी। लेकिन ये जो प्राकृतिक नील है इससे बेहतर होती थी। स्वाभाविक रूप से इस नील की जो डिमांड थी वो खत्म हो गई। अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत जबरदस्त बनिया थे। उन्हें हर समय किसी चीज के मूल्य का पता होता था। अंग्रेजों ने चुपके चुपके ये फैलाई नहीं बात, फैलाते तो शायद इसका कुछ अलग अर्थ निकलता। तो चुपके चुपके वहां के किसानों को कहा कि अपने अपनी जमीन तुम लोग वापस ले लो, जो हमारा पैसा वो दे दो। तो कुछ अनपढ़ किसान जो थे उन्होंने, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी समस्या वाली चीज थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को और वो पैसा उनको वापस जो मूल के रूप में लिया था, किसी तरह बेचारों ने किसी से मांग करके जैसे तैसे पैसा वापस कर दिया, अपनी जमीन छुड़वा ली। कुछ लोग समझदार थे, वो रुके हुए थे। बाद में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे थे। उनको क्या लगा कि ठीक है, जमीन अपना छुड़वा लेंगे और नील में तो जबरदस्त कमाई होती है, अब हम ही लोग नील उगाएंगे और बेचेंगे। लेकिन जब बाद में लोगों को ये पता चला कि अब नील की खेती का कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका कोई, तब उनको दो लॉस हो गया। अब वो नील उगा नहीं सकते थे। दूसरा लॉस क्या है, नील की जो खराबी क्या थी नील की खेती की, कि जिस एरिया में नील की खेती होती, जमीन के जिस हिस्से में नील की खेती होती, वो हिस्सा हमेशा के लिए बंजर हो जाता, दूसरा फसल नहीं हो सकता, दूसरी फसल नहीं पैदा की जा सकती। तो किसानों को कई कई झमेले हो गए। किसानों ने इसको लेकर के बड़ी प्रतिरोध किया, केस कर दिया। तो एक आपके मन की जो गलत धारणा वो मैं आप क्लियर करना चाहूंगा। तो हम लोगों ने अंग्रेजों की छवि पूरी तरह से खलनायक के रूप में पैदा की है, क्योंकि अंग्रेजों को तो हमारे बीच रहना नहीं है। यद्यपि हमारे देश का शोषण कई अन्य लोगों ने भी किया, कई अन्य शासकों ने भी किया, लेकिन उनके वंशजों के साथ चूंकि हमें जीना है, रहना है, इसलिए वो हमारे लिए अभी भी नायक है। जबकि आपको मालूम नहीं होगा, आपको गलत इतिहास पढ़ाई गई, सिखाई गई कि वैसे कई शासक थे जिन्होंने हमें बहुत जबरदस्त तरीका, अंग्रेजों से ज्यादा लूटा, शोषण किया। जब हमारे देश के लोग अकाल से मर रहे थे, उस समय वो अपने पत्नी की याद में स्मारक बनवा रहे थे। ऐसे भी निर्दयी शासक हुए हमारे देश में। अंग्रेजों ने हमें डाकघर दिया, रेलवे दी, हमसे लिया तो हमें दिया भी। उनके द्वारा बनाया गया पुल अभी भी, जो अभी तत्काल आप और हम हमारी देश की सरकार पुल बनवा रही है, उससे ज्यादा टिका हुआ अभी भी। हमें अंग्रेजी दी, जिस अंग्रेजी ने हमें विश्वव्यापी बना दिया। आज भारत के लोग विश्व भर में अपने झंडे को गाड़ चुके हैं, तो उसके पीछे उनकी बेहतर अंग्रेजी का ज्ञान भी है, और जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अंग्रेजों से। तो उनकी न्याय व्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता कि अंग्रेजों ने ही गलती की है, तो उनको भी सजा मिलती थी। केस कर दिया। वही केस की लड़ाई चल रही थी जिसके लिए गांधी जी यहां पहुंचे हुए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, द वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी. It is almost an uphill task to complete the whole chapter in a single video, in a single lecture. So, in the next lecture, we shall conclude this chapter. I hope that you would have enjoyed the whole lecture. Listen to me, watch the video properly. If it is not clear once,
try to listen to me twice, thrice, as much time as you can, so that you can impart better knowledge, better information about that particular chapter. Thanks all of you for watching my video patiently. I hope that in upcoming class, all the doubts in your mind which are prevailing will be cleared. Thanks once again.